are super excited for today's episode because we have Ashwarya joining us. And Ashwarya has got placement from Sharpener for the second time. He has completed his front end last year and came back to us again for back end and to learn back end and become a full stack developer. So, welcome to Sharpener Ke Sher Ashwarya. It is so good to have you here. Thank you. So Ashwarya, we have been in conversation over call, but this is the first time I'm seeing you, and I'm so glad you're so successful in life. So Ashwarya, how does it feel like getting a good job again for the second time from us? I feel great actually. Last time I was placed in service-based company, and this time I was placed in products-based company, and it is 5 day working. So Okay. yeah, the workload So you is always wanted a 5 day working. I remember every time when I used to yes, call you up for placements, तो मुझे हमेशा कहते थे कि मैम मुझे 5 day working की कंपनी चाहिए, right? yes, ma'am. Actually, I know the mental pressure we coders face during the coding time. We need relax. We just need the time to just relax our mind too. And I have spent near about 2 years in a service-based company, so I know how much workload I have faced during these periods. So yeah, at that particular time, I am just frustrated now. You know that I just rejected 2 or 3 companies just because they are offering 5.5 or Yeah. 6 working days. आई So रिमेम्बर मैं तुमसे yeah, कितनी बार गुस्सा भी हो जाती थी कि प्लीज ऐश्वर्या लास्ट मोमेंट में तुम कैंसिल कर देते थे अपनी इंटरव्यूज जब तुम्हें पता चल जाता था 5 डेज वर्किंग है राइट. यस मैम, मैंने पुणे की भी कंपनी, एक मुंबई की कंपनी, मैंने तो इंटरव्यू पूरा कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद भी मैंने मना किया। मैंने इंटरव्यू पे आई उनको बोल रिमेम्बर. दिया मैं 5.5 पे नहीं कंफर्टेबल हूँ, 6 पे नहीं कंफर्टेबल। या तो हाँ ठीक है, सेटिस्फाइड हूँ। चलो इन द एंड सेटिस्फाइड हो दैट इज व्हाट वी वांट लाइक ऑब्वियसली. यस मैम। So Ashwarya, as like I how does it feel like getting a good job again for the second time from us like. See, when I placed first time, I was just a front-end developer. So after that, I just started learning backend from the company code too. So it became quite easy to learn backend from the company and from the sharpener both. So I just combine the thing, combine whatever the things in sharpener present in the sharpener code module, and whatever the thing present in the company. So it become quite easy for me to learn the backend. So I just learn the backend within the, you can say within 3 or 4 months. I just learn the backend because only that particular thing I have to complete it. I just have to create some small projects in the sharpener. Yeah, so it's quite good for me. ग्रेट ग्रेट. सो ऐश्वर्या मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी लाइक आप अपनी जर्नी के बारे में मुझे और कुछ बताइए लाइक हाउ यू ग्रो अप, व्हाट डिड यू स्टडी एंड बेसिकली व्हाट मोटिवेटेड यू टू बिकम एन इंजीनियर. टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा कोई प्लान नहीं था इंजीनियर इंजीनियर का। जो भी ओके. पेरेंट्स करवाते गए मैं करता गया। मैंने 10th अपने छोटे से शहर से किया हूँ। फिर 12th ओके. मैंने लखनऊ से किया है, लखनऊ पब्लिक स्कूल से। फिर अच्छा. देन हम लोग कानपुर आए, वहां से मैंने बीटेक किया हुआ है। तो पूरी जर्नी घूमती रही है मेरे। फिर मैंने गवर्नमेंट की भी बढ़िया. प्रिपरेशन की है। फिर मैंने सेल्स पे भी जॉब करी है, मैं सेल्स पे मैनेजर तक की पोस्ट पे गया हूँ। देन आई ओके. थॉट दैट बाकी सब प्रोफाइल्स में इतना प्रेशर है, इतना वो है, इसमें थोड़ा रिलैक्स है पैसे के साथ साथ। ओके. ओके. गॉट इट. ओके. सो ऐश्वर्या तुमने जो बीटेक किया है तो बेसिकली मैं जानना चाहूँगी कि ये तुमने लाइक बीटेक रियल लाइफ कोडिंग जो होती है आपने मुझे बताया कि आपने ये रियल लाइफ कोडिंग कैसे किया. सो अगर आपने जैसे कॉलेज से बेसिकली स्टार्ट किया कि मतलब कॉलेज में आपने एमटेक किया था राइट. हाँ, मैंने बीटेक किया हुआ है, वो भी इलेक्ट्रिकल से। सो और दूर दूर से एमटेक करने का लाइक फ्यूचर आपके प्लान्स क्या हैं ऐश्वर्या लाइक वुड यू गो फॉर मास्टर्स या आपने क्या सोचा है अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बीटेक इलेक्ट्रिकल से किया हुआ है। तो ओके. अब उससे मास्टर्स करने का तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने पूरी पूरी अपनी प्रोफाइल ही चेंज कर ली है। और एज ओके. सच बीटेक इज सफिशिएंट फॉर मी, क्योंकि आई एम डूइंग गुड इन दिस प्रोफाइल। सो ऐसा ग्रेट. कुछ भी नहीं है कि आपको
हायर पोजीशन के लिए जाने के लिए आपको मास्टर्स करना जरूरी है, पीएचडी करना जरूरी है। आप अच्छा परफॉर्म करोगे, आप ऐसे ही चले जाओगे। देयर इज नो नीड टू कंप्लीट मास्टर और पीएचडी। सो ऐसा सच अभी कोई प्लान नहीं है, देखते हैं फिर इन फ्यूचर क्या होता है। ओके, बढ़िया। एंड ऐश्वर्या, पूछना चाहूंगी कि आपने अपनी वही कंपनी जिसमें आप काम कर रहे थे पहले, why did you not choose the same company you were working previously as a front end developer, and why did you want to change and switch your company? सी जब भी आप अगर इंटरनल कभी भी स्विच करोगे तो आपको इतना हाइक नहीं मिलेगा। जब आप किसी Okay. दूसरे कंपनी पे कभी भी स्विच करोगे ना, यू कैन एक्सपेक्ट कि हाँ आपको कोई 40 45 50% तक दे सकते। बट आप अगर इंटरनली ही कहीं पे भी जाओगे ना, तो आप मोर देन 20% आप हाइक एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। फिर वो 6 डे वर्किंग थी, सर्विस बेस्ड कंपनी थी और मुझको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो क्यों नहीं मैं दूसरे पे जाऊँ। ग्रेट। तो आई एम श्योर यू आर हैप्पी इन योर सेकंड कंपनी ना, जिसमें आपने प्लेसमेंट यस लिया है। यस, राइट नाउ आई एम हैप्पी। ठीक है, लास्ट वीक तक तो आप हैप्पी नहीं थे, अभी अच्छा लग रहा है मुझे सुन के कि यू आर हैप्पी। ग्रेट। See, the technology which is used in this company is totally different. मैंने अभी तक नेक्स्ट पे काम नहीं किया हुआ है बैकएंड के लिए। अगर आप फ्रंट एंड का है, ठीक है, फ्रंट एंड के लिए वो लोग सेम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट कर रहे हैं। बट ओके। बैकएंड के लिए नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, दूर दूर तक कुछ नहीं यूज कर रहे हैं ये लोग। दे आर यूजिंग नेस्ट एंड दे आर फिनटेक कंपनी। ठीक है, हर जगह पे नए नए चीजें हैं, नई चीज चीजें डेफिनेटली। सीखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली अब इतनी टेक्नोलॉजी आ रही है, हर चीज को और छोटा छोटा करते जा रहे हैं, तो आपको लर्निंग कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। तो ये बिल्कुल चैलेंजेस बिल्कुल। आज नहीं तो कल डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। यहाँ लर्निंग पे की नहीं, कोई कहीं एंड और नहीं। पे। राइट, लर्निंग की कहीं कोई एंड नहीं होता, ऑब्वियसली वो तो कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। हाँ यस मैम, ठीक है, तो इसी से चल रहा है। देखते हैं जब तक नहीं निकालेंगे तब तक चलते रहेंगे। ग्रेट। सो ऐश्वर्य, मैं पूछना चाहूंगी लाइक व्हाट डिड व्हाई डिड यू चूज अस अगेन फॉर योर सेकंड प्लेसमेंट आफ्टर योर इनिशियल एक्सपीरियंस विद शार्पनर? सी अब आप लोग कोई भी अपॉर्चुनिटी दोगे ना, एक तो थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया जाता है एज कम्पेयर टू अदर। हम लोग के इजीली इंटरव्यू शेड्यूल हो जाते हैं। फर्स्टली इंटरव्यू शेड्यूल होना ही एक इजी प्रोसेस नहीं है। फिर आप लोग के डायरेक्ट लिंक होते हैं एचआर से, तो थोड़ी प्रायोरिटी मिलती है एज कम्पेयर टू अदर। यस, हम लोग को परफॉर्म करना ही पड़ेगा इंटरव्यू पे, चाहे जो भी हो जाए, चाहे आप लोग रेफर करें, चाहे कुछ भी करें, इंटरव्यू पे परफॉर्म करना ही पड़ेगा। बट इंटरव्यू तक पहुंचाना, इट इज नॉट एन इजी प्रोसेस। मैंने देखा है, मैंने सर्च किया है जॉब, तो आई नो द पेन। सो यस, दैट्स व्हाई आई चूज दिस approach. ओके। एंड Shweta, let me just wanted to ask you, how important is building your LinkedIn profile while looking for jobs? क्या लगता है आपको? Okay, LinkedIn profile, yes. Whoever going to select you will definitely see your LinkedIn profile. तो आप LinkedIn प्रोफाइल इंपॉर्टेंट इसलिए भी होती है, आप कुछ भी काम करोगे, कुछ भी करोगे, तो आपको एक छोटा सा उसके बारे में रिव्यू, किसी को नया बंदा है कोई भी है, तो उसके बारे में आपको एक रिव्यू पता चल जाता है कि कैसा है, इसने क्या क्या किया है, क्या क्या कहाँ से स्टडी की हुई है, कहाँ से इसका कॉलेज है, इसने अगर बीटेक, मैं तो अपने रिज्यूमे पे सिर्फ बीटेक लिखता हूँ, अगर वो मेरे लिंक्डइन पे जाएगा तो उसको पता चलेगा बीटेक मैंने इलेक्ट्रिकल से किया हुआ। तो उसके बारे ओके। में थोड़ा सा पता चल जाता है। इसीलिए आप मेरी अगर लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाओगे ना, आपको मेरे लास्ट कंपनी के जितने एम्प्लॉय होंगे सबसे मैंने रिकमेंडेशन डलवाया हुआ है कि यस ही इज वेरी ऑसम। जो भी है आप मतलब कि होता है, प्रोफाइल इम्पैक्ट करती है आपको। एक छोटा सा डेफिनेटली। भी इम्पैक्ट और इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा काम कर जाता है। बात तो सही है। So Ashwarya, do you have any tips for our Sharpenerians currently work who are in the placement module? जस्ट बी कॉन्फिडेंट, और जो कर रहे हो सही कर रहे हो भाई, करते रहो। बढ़िया है, मॉड्यूल सही है, सब कुछ अच्छा है, आपको इंटरव्यू के चांसेस भी खूब आएंगे। बस जो कर रहे हो खुद से करो, चीटिंग मत करो मेरी तरह। तो तुमने क्या चीटिंग किया था? अब मैंने 2023 पे किया हुआ था, तब यश भैया, वैभव भैया ही हम लोग को पढ़ाते थे। बट आई थिंक डेफिनेटली चीटिंग इज लाइक नहीं, क्योंकि आप झूठ अगर बोलोगे तो सबसे झूठ बोल सकते हो पर अपने आप से बिल्कुल नहीं बोल सकते, राइट? तो डेफिनेटली एक ना एक दिन डेफिनेटली ऑब्वियसली आपको कभी ना कभी ऑब्वियसली वो चीज फील हो यू ही हैव टू जाएगी कि फेस। उस टाइम पे बिल्कुल।
कर लिया होता सही से तो आज यहाँ पे ये नहीं फेस कर रहा होता। कुछ भी Okay. आपको नया सीखना, कुछ भी आप डॉक्यूमेंटेशन पे पढ़ो, सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन पे अवेलेबल है। किसी के भी आपको कुछ भी लाइब्रेरी पढ़नी, मैं यही कहूँगा शार्पनर से, कुछ भी आपको सीखना हो, एवरीथिंग इज ऑन इंटरनेट। आप एक बार सर्च करो, गूगल सर्चिंग इज अ गुड प्रैक्टिस। Okay. So, Ashwarya, I would like to thank you so much for joining us today, and a big thank you for your time and insights. And I'm so happy to see you successful, and more power to you. All the best, थैंक यू मैम। Ashwarya, and have a great day. Bye. थैंक यू मैम।